Once again, a very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter second of your book, and the name of your chapter is Federalism. Okay, so class, in our last class, we have discussed about uh, what makes India a federal country. Okay, so India is a federal country, as you know. ठीक है and what makes India a federal country because our system ठीक है our constitution ठीक है the framers of our constitution make it very clear and what they did they divide the power. They mention specified the jurisdiction of each level of government into it. Okay, and afterwards, like you can say after 1990s, like third level of federalism is also there. Third level of government is also there. That is panchayati raj, panchayats and municipalities. Okay. So, union list, state list, concurrent list, residuary subject, we all talked about it. Now, today we will start with the next topic of your chapter, and that is how is federalism practiced in India, right? So, how is federalism practiced in India? So, constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. The real success of federalism in India is attributed to its nature of democratic politics. So, as you all know, constitutional provisions are necessary. Obviously, constitutional provisions are necessary. अगर कोई laws, rules, regulations नहीं होंगे तो federalism जो है success हो ही नहीं सकता है. But only provisions को mention करना हमारे constitution में कि yes, we will follow the system of federal government and etc. like that. It is not just enough. It is not just enough because and the experiment of federal government in India has succeeded, not merely just because of the constitutional provisions. The real success of federalism in India is attributed to its nature of democratic politics. ठीक है, जो इसका नेचर है हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का. ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मींस इन्वॉल्विंग ऑफ मोर एंड मोर पीपल. ठीक है, फुलफिल द डिजायर्स ऑफ मोर एंड मोर पीपल, एस्पिरेशंस फुलफिल करना. ये जो मेन एट्रीब्यूट था, ये जो मेन नेचर था इंडिया का, जो एट्रीब्यूट था, इसी एट्रीब्यूट की वजह से जो प्रोविजंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए और ये जो एट्रीब्यूट था, इन दोनों की वजह से फेडरलिज्म जो है इंडिया में succeed हुआ है, right? And this ensured that the spirit of federalism, respect for diversity and desire for living together became a shared ideal in our country. So ये जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाला जो नेचर है, इससे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट ensured the spirit of democracy. Obviously, the very spirit of democracy is people. इसने इंश्योर किया लोगों के this ensured the spirit of the democracy. After that, respect for diversity को like आप बोल सकते हो डिफरेंट ओपिनियंस को, व्यू पॉइंट्स को, डाइवर्स पीपल, डाइवर्स थिंकिंग को इसने प्लेस दी. जो लोगों का एक डिजायर था, एस्पिरेशन था साथ में रहने का, इसको फुलफिल किया. ये जो था मेन आइडियल्स की डाइवर्सिटी को फॉलो कर, डाइवर्सिटी को क्या करना है हमें, डाइवर्सिटी को हमारी सबसे बड़ी यूनिटी बनानी है. ठीक है, फुलफिल करने हैं ऑल डिजायर्स, फुलफिल करने सारे डिजायर्स किसके, डाइवर्सिटी के. दैट इज लाइक इट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और इसी वजह से जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो सक्सीड हो पाया है. सो व्हाट आर द थ्री, कुछ आप बोल सकते हो मेजर स्टेप्स क्या रहे हैं, कैसे हमने डाइवर्सिटी को
डाइवर्सिटी को और जो लोगों की डिजायर्स है उसको फुलफिल करने की कोशिश की है, साथ में रखने की कोशिश की है, और कैसे हमने फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने की कोशिश की है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज थ्रू linguistic states. Linguistic, we will talk about it elaborately, each of these, right? Linguistic states. Now what do you mean by linguistic? Linguistic, something which is related to the language culture, that is known as linguistic. We will talk about linguistic states, the creation of linguistic states. Secondly, we will talk about language policy. जो second step था इंडिया को फेडरल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, दैट इज लैंग्वेज पॉलिसी. ठीक है, दिस इज द सेकेंड, यू कैन से सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन, और सेकेंड स्टेप रहा है आपका फेडरलिज्म को फॉलो करने के लिए. एंड द थर्ड वन इज द सेंटर स्टेट रिलेशन, और कि सेंटर और स्टेट को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, ठीक है, सेंटर और स्टेट का रीस्ट्रक्चर जो है, ये तीन इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो स्टेप्स थे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के, बोल सकते हो पॉलिटिक्स के, बोल सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के, बोल सकते हो. ये थ्री मेन स्टेप्स थे जिससे कि फेडरलिज्म जो है इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है और सक्सेसफुली प्रैक्टिस किया जाता है. नाउ व्हाट आर दीज लिंग्विस्टिक स्टेट्स? लिंग्विस्टिक स्टेट्स, this was the first and a major test for democratic politics in our India. And if you now just look at this map, this is the map of India in 1947, and this is present day map of India, right? If you compare it, just look at the states, just look at the territories. यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है. नाउ दिस इज वेस्ट पाकिस्तान which was the part of India, ठीक है. बांग्लादेश, प्रेजेंट डे बांग्लादेश जो हमारे इंडिया का पार्ट था, ठीक है. नाउ लीव दैट, जो पार्ट था अब नहीं है, लीव दैट. बट देखो, और दूसरी चीजें जो है, टेरिटरीज को कैसे, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो है, ये इंडिया को, मतलब इंडियन प्रोटेक्टेड स्टेट्स थे, ठीक है. ये देखो, ये सारी चीजें, मतलब लाइक आपको जो सेग्रीगेशन है इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा इसमें. नाउ जस्ट लुक एट दिस मैप, ठीक है. टेरिटरी को डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में क्या किया गया, डिवाइड किया गया. नाउ जस्ट लुक एट राजस्थान, ठीक है. क्या एक, अब स्ट्रेट लाइन भी तो यहाँ पे एक क्लिक क्या कर सकते, खींच सकते थे और टेरिटरी को डिवाइड कर सकते थे. नहीं, ऐसा नहीं किया, ठीक है. आप जो इंडियन टेरिटरी, इंडियन स्टेट्स की जब रीजन्स देखोगे तो इट्स लाइक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेडली इसको क्या किया गया है, इसको डिवाइड किया गया है. आपको अनलाइक अनलाइक अफ्रीका में क्या किया, डिवीजन जो किया गया है वो एकदम स्ट्रेट कर दिया, ठीक है. जैसे कि हम बॉक्सेस बनाते हैं, जस्ट लाइक दैट वहां अफ्रीका में बॉक्सेस बना दिया और टेरिटरी को डिवाइड कर दिया. बट इंडिया में ऐसा नहीं किया. इंडिया में अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द कस्टम, कि इस एरिया में ये कस्टम चलता है, यहाँ के लोग ये कल्चर अपनाते हैं, इन सारी चीजों को लेके क्या है, इंडिया को डिवाइड किया गया, राइट. सो यस, सो from 1947 to 2019, many old states have vanished and many new states have been created. Again, look at this map of India. ठीक है, बहुत सारे जो states है उनको क्या कर दिया, vanish कर दिया गया. बहुत सारे new states जो है emerge होके आए थे. For example, आप झारखंड बोल दीजिए, ठीक है, आप तेलंगाना बोल दीजिए, आप जम्मू एंड कश्मीर, और अब लद्दाख हो चुका है उसका बोल दीजिए. बहुत सारे स्टेट्स जो है क्रिएट होके आए, क्रिएट होके बने हैं, ठीक है, क्रिएट हुए हैं. बहुत सारे स्टेट्स वैनिश भी हुए हैं, ठीक है. एंड एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड. बहुत सारे जैसे ये, नाउ जस्ट लुक एट द सेंट्रल प्रोविंसेस का नाम क्या है यहाँ पे, मध्य प्रदेश, ठीक है. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को मिला के सेंट्रल प्रोविंसेस था. छत्तीसगढ़ का भी एरिया था, बट नाउ इट इज डिफरेंट स्टेट्स. छत्तीसगढ़ अलग है, महाराष्ट्र अलग है, मध्य प्रदेश अलग है. राजस्थान, पहले राजपुताना बोला जाता था राजस्थान को, नाउ इट इज राजस्थान, ठीक है. बॉम्बे,
ठीक है, पहले बॉम्बे बोला जाता था, नाउ इट इज महाराष्ट्र, और बॉम्बे को अब मुंबई बोल दिया किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनको वैनिश भी किया गया है, नेम्स को भी वैनिश किया गया है, और बहुत सारे न्यू नेम्स और न्यू एरियाज जो है एमर्ज होके भी आए हैं। So now, areas, boundaries, and names of the states have been changed, and some states have been formed of the people who spoke the same language, and even on the basis of their culture, ethnicity or geography. ठीक है, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं फॉर्म किस बेसिस पे फॉर्म किया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डिवीजन है वो इतना स्मूथली नहीं है, आप देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा डिवीजन दिखता है, ठीक है, लाइक एकदम से स्लैंट या स्मूथ या एकदम स्ट्रेट लाइंस नहीं दिख रही है। तो ये डिवीजन किस बेसिस पे हुआ है, ये डिवीजन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज। यहाँ पे जितने लोग रहते हैं जो एक जैसी सी लैंग्वेज बोलते हैं, उसके बेसिस पे उनको क्या है डिवाइड किया गया, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखोगे, इनको डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज। जो मणिपुरी बोल रहे हैं उनको जो मणिपुरी बोल रहे हैं उनको मणिपुर बना दिया गया, ठीक है, उस एरिया को जहां जहां वहां के लोग जो भी मणिपुरी बोल रहे हैं वो वो स्टेट मणिपुर बन गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, अकॉर्डिंग टू देयर एथनिसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफी, ठीक है, इन स्टेट्स को डिवाइड किया गया है। एंड दीज इंक्लूड्स नागालैंड, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड, दीज आर सम ऑफ द स्टेट्स। पहले आंध्र तेलंगाना जो था आंध्र प्रदेश का ही क्या है पार्ट था, बट नाउ इट इज द पार्ट ऑफ, नाउ इट इज अ डिफरेंट स्टेट, राइट। सो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम भी थी, लाइक कि हम स्टेट्स को अगर लैंग्वेज के बेसिस पे रेस करेंगे, तो बहुत सारे लीडर्स को ये फियर भी था कि वो डर रहे थे कि इससे डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा कंट्री का। ठीक है, हर एक स्टेट जो है अपनी इंडिपेंडेंस डिमांड करने लगेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा ये रेसिस्ट किया कि कुछ टाइम पे क्या होगा, ये सारी चीजें जो लोग हैं यूज टू हो जाएंगे, और लोग जो हैं इस चीज को अपनाने लग जाएंगे। ठीक है, एंड टाइम के साथ साथ हमने देखा जो हमारा लिंग्विस्टिक डिवीजन था वो हमारी डिसइंटीग्रेशन का कॉज नहीं, डिसइंटीग्रेशन नहीं, बट इवन हमारे कंट्री को यूनाइट करने में सबसे हेल्पफुल रहा है, जो ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने जो डिवीजन किया है उसको। नाउ द सेकेंड वन इज द लैंग्वेज पॉलिसी। So first of all, our constitution did not give the status of national language to any one language. आपको पता होगा हमारी कोई भी national language नहीं है। We don't have any national language. We have official languages, ठीक है, but we do not have any national language. हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया था एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बिकॉज जो इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, दैट इज 40% जो इंडियंस हैं आपकी, उनकी मदर टंग जो है वो हिंदी है, दैट्स वाई हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। बट जो 60% थे वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, मेजोरिटी में हिंदी ही थी, दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी के अलावा 21 और दूसरी लैंग्वेजेस थी जिसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज या फिर सेकंड लैंग्वेज बोल सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे एज अ सेकंड लैंग्वेज, शेड्यूल्ड लैंग्वेज एज अ रिकॉग्नाइज किया। इसका मतलब कि अगर इफ यू वांट टू गिव एग्जाम इन एनी अदर लैंग्वेज अदर देन हिंदी, यू मे परस्यू इट, आप दे सकते हैं। ठीक है, so a candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examinations in any of these languages. इस 21 languages में कोई भी language जो है वो choose कर सकता है। Sometimes states do have their own languages, ठीक है, जैसे कि we officially we in Rajasthan we speak Marwari, but ठीक है वो it's a kind of Hindi only, उसका कोई खुद का लिपि या लैंग्वेज नहीं है। बट इफ यू go to West Bengal, if you go to like Maharashtra, they have their own language, Marathi, Gujarati,
तमिल, कन्नड़, ठीक है, तेलुगु, बंगाली, तो इनकी खुद की लैंग्वेज है एंड इनको शेड्यूल लैंग्वेज के एज अ शेड्यूल लैंग्वेज क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है. ना इफ यू रिमेम्बर द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. Again, just look at this कि वहां से उन्होंने क्या है, सिन्हालास को, श्रीलंका में तो सिन्हालास ने क्या किया था कि सिन्हाला ही नेशनल लैंग्वेज है, सारे काम जो करने हैं सिन्हाला में ही करने हैं. बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने या हमारे लीडर्स ने इस चीज को ऑप्ट नहीं किया. बहुत कॉशियसली, बहुत यू कैन से कि कॉन्शियसली उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें हिंदी को ही ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज या नहीं रखना है, ना नेशनल लैंग्वेज रखना है. हमें डिफरेंट रिलीजन्स को, सॉरी डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी क्या है, हमें प्रमोट करना है, प्लस हमें उन्हें इम्पोर्टेंस देनी है, right? And according to the constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कहा था कि 1965 तक जो हिंदी का आप यूज, सॉरी इंग्लिश का जो यूज कर रहे हो वो स्टॉप, रुक जाना चाहिए, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है. बट बहुत सारे ऐसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे जो चाहते थे कि नहीं, इंग्लिश को एज अ कॉमन लैंग्वेज हमें कुछ तो रखना चाहिए और इंग्लिश का जो यूसेज है वो कंटिन्यू होना चाहिए. और इससे तमिलनाडु में तो एक वायलेंस भी हो गया था, ठीक है, एक वायलेंट रूप उसने ले लिया था तमिलनाडु में. वो दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म इन तमिलनाडु कि इंग्लिश को जो है आप कंटिन्यू रखिए. एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाय अग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश. और फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ओके हम इंग्लिश को कंटिन्यू रखेंगे एज एन, यू कैन से कि रिस्पॉन्ड किया था मिल, बिकॉज वायलेंस हो गया था. अब लोग डिमांड कर रहे थे, अब लोगों का एस्पिरेशन ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनली ये डिसीजन ले लिया, ओके वी विल कंटिन्यू द यूसेज ऑफ इंग्लिश. Now, many critics think like that this solution favored the English speaking elite, कि English speakers को बहुत ज्यादा बढ़ावा देंगे और हमारी जो हिंदी है कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगी, या फिर हिंदी को इतना प्रमोशन नहीं मिल पाएगा. बट हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारी गवर्नमेंट है वो हमेशा प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. हमेशा उन्होंने क्या किया है, हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश की है, एक ऑफिशियल पॉलिसी रही है. बट इट डजंट मीन्स कि जो डिफरेंट हिंदी स्पीकिंग, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है उन पे इम्पोज किया गया है कि नो आपको हिंदी ही बोलना है या आपको ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, नहीं, ऐसा नहीं किया है. बट यस, हिंदी के प्रमोशन में की ऑफिशियल पॉलिसी रही है कि हिंदी को कहीं ना कहीं से बढ़ावा दिया गया है, प्रमोट करने की कोशिश की गई है. So the flexibility shown by the Indian political leaders helped our country to avoid this like kind of situations that happened in Sri Lanka. तो ये जो हमारे लीडर्स ने जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि नहीं, वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी लैंग्वेज, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दैट 21 लैंग्वेजेस, यू कैन से 20 to 23 लैंग्वेजेस जो है रिकॉग्नाइज की गई कि आप इनमें एग्जामिनेशन दे सकते हो, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. नाउ if you visit महाराष्ट्र और लाइक वहां पे आप देखते हो कि जो मराठी लोग हैं नॉर्मली उनका जो वर्क होता है, जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो मराठी लैंग्वेज में ही होता है, ठीक है. तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज को बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है. नहीं तो इंडिया में भी वही सिचुएशन अराइज होती जो श्रीलंका में अराइज हुई थी. एंड द नेक्स्ट वन एंड द थर्ड स्टेप यू कैन से जो बहुत इम्पोर्टेंट आपका स्टेप रहा है फेडरलिज्म को फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने के लिए, दैट इज द सेंटर स्टेट रिलेशन. एंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेंटर स्टेट रिलेशंस, restructuring the center state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice.
सो बिफोर लाइक यू कैन से बिफोर 1990 जो दो टायर सिस्टम चल रहा था हमारा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड बिफोर 1990 जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना बेटा, उनके पास पावर होते हुए भी पावर नहीं थी। जो मेन पावर्स थी वो लाई करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इन सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है, ठीक है, यूनाइटेड हो जा, उनमें आपस में ट्रस्ट नहीं था। और लाइक सेंटर ऑब्वियसली अपनी पावर्स का मिसयूज करती थी, ठीक है। आई वुड लाइक टू show you a picture. Now just look at this cartoon. It is mentioned in your book also. ठीक है, this is central government. The states played for more powers and these are like states. आप देख रहे हो, केरला, मद्रास, उड़ीसा। मद्रास is the यू कैन से पहले जब जो चेन्नई है उसको मद्रास बोला जाता था, या तमिलनाडु प्रोविंसेस को। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, तो यूपी, दीज आर लाइक स्टेट्स। स्टेट्स को अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो ये 1990 से पहले का एरा है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होती थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट इंदिरा गांधी के फॉर्म में ये शो कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, पावर्स डिवाइड करती थी, अपने अकॉर्डिंग जो है पावर्स देती थी, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उसे स्ट्रेंथन करना, उससे स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी था। सो द restructuring the center state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. And we have seen from the long time the same party ruled, एक ही पार्टी क्या कर रही थी, सेंटर को भी एक ही पार्टी रूल कर रही थी, एंड स्टेट्स को भी क्या कर रही थी, एक ही पार्टी रूल करती थी। फॉर एग्जांपल अगर सेंटर में कांग्रेस है तो स्टेट में भी कांग्रेस है। इन केस अगर सेंट्रल में फॉर एग्जांपल पार्टी कांग्रेस है और स्टेट में कोई दूसरी पार्टी है, कोई राइवलरी पार्टी है, फिर भी क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट often misuse the constitution to dismiss the state governments, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है चेंजेस ला के स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर को रिड्यूस करने की कोशिश करते थे। तो ये जो था ये बहुत ही लाइक कह सकते हो कि एक वीक पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स होती थी। बट आफ्टर 1990 व्हाट हैपेंड, ये जो एरा है ये चेंज हुआ। द एरा ऑफ coalition government began. Now what is this coalition government? A government formed by the coming together of at least two political parties, usually partners in a coalition, form a political alliance and adopt a common program. Okay, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे, ठीक है, बहुत सारी रीजनल पार्टीज या स्मॉल पार्टीज आके क्या करती है, एक मेजर पार्टी का सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी है, उसको मेजोरिटी में आने के लिए, रूलिंग पार्टी बनने के लिए उसको 200 इन आवर इंडिया लोकसभा में 272 सीट्स चाहिए। बट क्या हुआ, मेजोरिटी में कोई भी नहीं आया। 240 सीट्स जो है एक पार्टी के पास आई है, ठीक है। तो अगर जो छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल रीजनल पार्टीज है वो क्या करती है, उस पार्टी को सपोर्ट करती है कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे करते करते टोटल 272 सीट्स बच जाती है। तो क्या हुआ, एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जब मिलते हैं और आपस में गवर्नमेंट बनाते हैं, दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। अलायंस होता है, इसको हम अलायंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि एक कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। अलायंस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ऐसा अलायंस जो कॉमन प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करते हैं। नाउ आई want to show you this picture. Now just look at this picture. अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो एक उनके पास वो मेजर पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोalition गवर्नमेंट बना है, दैट्स व्हाई ही वाज इन मेजॉरिटी, दैट्स व्हाई ही इज सिटिंग हियर। बट और दूसरी चीजें देखो, सीट बेल्ट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो इसका एक चेयर के जैसे चार पैर होते हैं, ठीक है, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट रीजनल पार्टीज, देखो सिंबल से पता चल रहा है कि ये डिफरेंट रीजनल पार्टीज हैं। तृणमूल कांग्रेस और अलग अलग जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं वो क्या कर रही हैं, इनको सपोर्ट कर रही है, राइट।
इन्हें सपोर्ट कर रही हैं। और अगर ये सारी चीजें यहाँ से हट जाए, एक चेयर से, फॉर एग्जाम्पल एक चेयर से उसका ना बैक रहे ना उसके चार लेग्स रहे, तो क्या वो चेयर चेयर कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, या वो हो सकता है डगमगाए। तो अगर जस्ट लाइक दैट, अगर ये गवर्नमेंट क्या होती है, ये गवर्नमेंट मिल के बनती है, ठीक है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, एटलीस्ट दो होनी चाहिए, बट दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जब मिल के गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है, उस टाइप की गवर्नमेंट को हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। एंड 1990 के बाद ये कोalition गवर्नमेंट का एरा जो है स्टार्ट हो चुका था, एंड यहाँ पे एक नया कल्चर इमर्ज होके आया, एंड दैट कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये जो कल्चर था, पावर शेयरिंग का कल्चर था, कि ज्यादा से ज्यादा अब पावर्स को शेयर किया जा रहा था। अब मेजोरिटी में गवर्नमेंट तो बीजेपी की बन गई इस कार्टून के थ्रू, बट यहाँ पे जो पावर्स और किसके हाथ में थी? पावर्स अब इन स्मॉल स्मॉल रीजनल पार्टीज के पास में भी थी। अब पावर जो है, कुछ पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, इनके पास भी, इन छोटे छोटे पार्टीज के पास में भी डिवाइड हो चुकी है। तो इससे क्या हुआ? पावर शेयरिंग जो है इंक्रीज हुआ, रेस्पेक्ट इंक्रीज हुई। जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनका, उनके लिए रेस्पेक्ट, उनकी जो ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, ठीक है, पावर है, वो इंक्रीज हुई। तो ये बहुत, ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो एक मेथड था, या फिर स्टेप था फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने का। Okay, so class, this is all about today. Go through these topics, and if you face any kind of doubt, you may ask me later on. uh, this is all about today. Thank you so much. बेटा कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अच्छे से कर लेना आप। हाँ बोलो हिमांशु। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हिमांशु। यस बच्चे बोलो। लैंग्वेज और पॉलिटिक्स है ना मैम? सॉरी, लैंग्वेज और पॉलिटिक्स वाला जो पैराग्राफ है ना, उसकी हाँ जब जी। हम हाउ हैव मैंने नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स वाला मैम समझ में नहीं आया। नॉन हिंदी स्टेट्स, हाउ नॉन मैनी हिंदी हिंदी स्टेट्स नॉन कौन है? However, many non-Hindi states demanded that the use of English continue. Non-Hindi states like Tamil Nadu, West Bengal, Maharashtra, these are non-Hindi states. आंध्र प्रदेश, केरला, वहां पे उनकी रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये नॉन हिंदी स्टेट्स है। उन्होंने बोला इंग्लिश का यूसेज जो है कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, बिकॉज सेंट्रल लेवल पे जो है, ठीक है, अगर हिंदी का यूज ज्यादा होगा तो हमारी लैंग्वेज, ऑब्वियसली तमिल का तो यूज होगा नहीं क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज नहीं है। तो एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो सब समझ सके। तो दैट्स व्हाई दे डिमांडेड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ओके क्लास, ओके क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सब सब